Assalamu alaikum students. Today we are here with another class of organization behavior. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि after finishing chapter number 11, I will be giving you an assignment on chapter. So ये assignment आपके सामने है. 3 questions हैं which you have to attempt. Question number 1 is what is communication and what are the primary functions of the communication process in organizations? Question number 2. What are the key parts of the communication process and how do you distinguish between formal and informal communication? Question number 3. What are the differences among downward, upward, and lateral communication? These are very general questions which we have already discussed in the lecture, and I don't think that answering them will be a problem for you. I want your answers typed on MS Word, and or you can also write it with your own hands, but in that case you'll have to send me a PDF version of that file. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 12, which is leadership. Leadership. Leadership is the ability to influence a group towards the achievement of a vision or a set of goals. The source of this influence may be formal, such as that provided by managerial rank in an organization. But not all leaders are managers, nor, for that matter, are all managers leaders. Just because an organization provides its managers with certain formal rights is no assurance they will lead effectively. लीडर कौन होता है, लीडरशिप क्या होता है, बेसिकली स्लाइड में हमें इसके बारे में बताया गया है. लीडर कोई भी एक ऐसा इंसान हो सकता है, कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो कि आपको किसी गोल की तरफ आपकी अटेंशन डाइवर्ट करता है एंड ऑल्सो हेल्प्स यू इन अचीविंग दैट गोल. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ लीडरशिप, सो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप जो कि आपको एक विजन और एक स्पेसिफिक गोल की अचीवमेंट की तरफ लेके जाते हैं. ये लीडर कोई भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपका डायरेक्टर या आपके कोई मैनेजर ही जिनको फॉर्मली असाइन किया जाता है ऐसी पोजीशन, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो ही आपके लीडर हो. बट लीडर कैन बी एनीवन. लीडर कैन बी योर टीचर, एनी टीचर जिनसे आप इंस्पायर्ड हो. इसके अलावा लीडर कोई कैन बी एनी कोलीग इन योर ऑफिस जो कि आपकी गोल्स में या आपकी वर्क ड्यूटीज में आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हो, या आपके कोई मैनेजर भी आपके लीडर हो सकते हैं. लेकिन जरूरी नहीं, जैसे यहाँ पर मेंशन है, कि सारे मैनेजर्स लीडर हों. इस बात का मतलब यह है कि हर मैनेजर के अंदर लीडरशिप एबिलिटी का होना जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको फॉर्मली एक पोजीशन देती है, फॉर्मल राइट्स देती है और वर्किंग एज अ डायरेक्टर और अ मैनेजर, दिस डज नॉट मीन कि आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटीज भी बहुत अच्छी होंगी और उसके नतीजे में आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को लीड कर सकेंगे. लीडरशिप की जो हम बात करें, तो इट इज मोर ऑफ एन एबिलिटी रादर देन अथॉरिटी और अ पोजीशन. So we are starting with the first theory of leadership, which is trait theory. Trait का मतलब हम खुद समझते हैं हमारी personal characteristics या हमारी qualities. तो यहाँ पर हम बात जब again leadership की कर रहे हैं, तो it is not according to the position or the authority given to a person, rather than the qualities and the personal characteristics of the person which make him a leader. I'm going to read this slide for once. Trait theories of leadership thus focused on personal qualities and characteristics, as I just said before. A comprehensive review of the leadership literature, when organized around the Big Five, has found extraversion to be the most important trait of effective leaders. Conscientiousness and openness to experience also showed strong relationships to leadership, though not quite as strong as extraversion. Advocates of emotional intelligence argue that without it, a person can have outstanding training, a highly analytical mind, a compelling vision, and an endless supply of terrific ideas, but still not make a great leader. अगर आप रिकॉल करें तो पर्सनालिटी का चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वी डिस्कस्ड द बिग फाइव मॉडल. आई एम श्योर मेजोरिटी को याद होगा, बट फॉर दोज जिनको याद नहीं है, मैं एक आपको रिवीजन इसकी करवा देती हूँ. बिग फाइव मॉडल के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था कि एवरी पर्सनालिटी हैज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एक है एक्सट्रावर्जन. आपके सामने इनके नाम इस स्लाइड्स में भी लिखे हुए हैं. एक्सट्रावर्जन, कंसाइटनियसनेस,
ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक इसमें इमोशनल स्टेबिलिटी भी है और एक फैक्टर एग्रीएबलनेस का भी है. By extraversion, I mean how much the person is comfortable with relationships, the extent to which he is sociable and he is happier and he likes to meet people and is fond of company. कंसाइटियसनेस होती है द मेजर ऑफ रिलायबिलिटी, यानी कि जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है, कितना डिपेंडेबल है या कितना रिस्पॉन्सिबल है. ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब है कि क्या रेंज ऑफ इंटरेस्ट है, क्या उसको एक ही चीज पसंद है और ही इज क्रिएटिव एंड ही वांट्स टू ट्राई आउट डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग वर्क, ही लाइक्स टू एक्सपेरिमेंट. इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि उस पर्सन में कितनी एबिलिटी है टू कंट्रोल एंड टॉलरेट एंड विथस्टैंड स्ट्रेस. अगर उसको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो आता है तो वो कितना अपने आप को उस पोजीशन में कॉन्फिडेंट रखता है और कितना ऑप्टिमिस्टिक रखता है और कितना नेगेटिव इमोशन से दूर रहता है. The last factor in Big Five model is agreeableness. Agreeableness का मतलब है कि कितना ज़्यादा the person has the tendency to defer to others. यानी कि कितना ज़्यादा वो cooperative है, कितना ज़्यादा trustable है. So जब हम leaders की बात करते हैं तो leadership के लिए सबसे important characteristic is that of extraversion. अगर आप sociable नहीं हैं, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, you are not fond of their company, you are not fond of talking, then how come you are going to interact with so many people जिनके लिए आप एक लीडर साबित हो. So according to Big Five model, लीडर होने की सबसे important quality है extravert होना. इसके बाद कहा गया है कि conscientiousness and openness to experience भी important है for leadership, but they are not as important as being an extrovert. So conscientiousness का मतलब है कि एक बंदा कितना रिलायबल है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है या कितना क्रिएटिव है और कितना एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, ये भी एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज में शामिल होती हैं. जैसा यहाँ पर मेंशन है that it also shows strong relationships to leadership. लास्ट में हम जो बात डिस्कस कर रहे हैं वो है इमोशनल इंटेलिजेंस की, यानी वो लोग जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि एक पर्सन के पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो सकती है, उनका बहुत ही आइडियाज बिल्डिंग एंड रिसेप्टिव माइंड हो सकता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स और विजन बहुत हाई हो सकते हैं, बट इट इज अगेन नॉट नेसेसरी कि वो इन सारी क्वालिटीज के बावजूद एक अच्छा लीडर बने. बिकॉज एक अच्छा लीडर का काम होता है कि उसने बाकी लोगों को या अपने ग्रुप के लोगों को अपने साथ लेकर चलना है. इवन उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग बेहतरीन आइडियाज के बाद ही डज नॉट नो हाउ टू गेट on well with the colleagues and the subordinates, he cannot make a good leader. जी, तो पहले हमने डिस्कस की थी ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बिहेवियर रिलेटेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप. सो यहाँ पर स्लाइड में हमारे सामने मेंशन्ड है ट्रेड रिसर्च प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर सेलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर लीडरशिप. In contrast, behavioral theories of leadership implied we could train people to be leaders. These theories propose that specific behaviors differentiate leaders from non-leaders. Most of the leadership behavior described by employees are initiating structure and consideration. So there is a difference between trait theories and behavior theories because trait theory ये कहती है कि there are certain characteristics or qualities of a person which make him eligible to be a good leader. अगर उसमें वो qualities मौजूद नहीं है तो in spite of training, in spite of vision, in spite of the objectives he has, he cannot serve his people as an effective leader. बिहेवियर थेरीज इसके बिल्कुल उलट बात करती है. वो ये कहती है कि हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं टू एक्ट एज लीडर्स, यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक बिहेवियर हैं जो कि लीडर्स के अंदर होते हैं और नॉन लीडर्स के अंदर होते हैं. तो हम जब उन बिहेवियर की ट्रेनिंग अपने लोगों में देंगे तो दे कैन एक्ट एज गुड लीडर्स. और लीडरशिप बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो डिस्कशन में आता है वो है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसीडरेशन. अब ये दोनों बिहेवियर क्या हैं, वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग स्लाइड्स. The first leadership behavior that we will discuss here is initiating structure. Initiating structure is the extent to which a leader is likely to define
and structure his or her role and those of employees in the search for goal attainment. It includes behavior that attempts to organize work, work relationships, and goals. A leader high in initiating structure is someone who assigns group members to particular tasks, expects workers to maintain definite standards of performance, and emphasizes the meeting of deadlines. So इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एक ऐसा बिहेवियर है जो लीडर्स को डिफाइन करता है लीडरशिप के लिए और उनके रोल को बताता है कि किस तरीके से उन्होंने गोल्स को अटेन करना है। अब किसी भी गोल को अटेन करने का मेन तरीका क्या होता है? जब आपका कोई गोल हो कि आपने पेपर में फॉर एग्जांपल पास होना है या आप कहें कि मैंने 3.5 से ज़्यादा जीपीए लेनी है, तो आप उसके लिए अपनी वर्क ड्यूटीज को ऑर्गेनाइज करते हो। आप देखते हो कि क्या अच्छा कोर्स करिकुलम क्या-क्या है। फिर आप देखते हैं अच्छा मुझे ये इस बुक के अलावा कोई और रीडिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। फिर तीसरी बात ये है कि आप नंबर ऑफ आवर्स डिफाइन करते हैं कि आप कितने घंटे इस सब्जेक्ट को देंगे सो दैट आप इतने चैप्टर्स कवर कर सकें बिफोर योर पेपर और इतने आप रिवीजन में कर सकें। सो जब भी आप अपने गोल्स की बात करते हैं देन यू स्ट्रक्चर योर वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये एबिलिटी ये बिहेवियर असल में इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसा यहाँ पे कहा गया कि जब हम एक लीडर की बात कर रहे हैं तो उसके इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के बिहेवियर में ही विल फोकस ऑन ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, द ड्यूटीज, द रिलेशनशिप्स एंड द गोल्स। एक ऐसा लीडर जिसमें इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का बिहेवियर ज्यादा हो उसमें क्या हम उसका वर्क बिहेवियर देखेंगे उसके बारे में। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट्स मेंशन हुए हुए हैं। सबसे पहले है असाइंस ग्रुप मेंबर्स टू पर्टिकुलर टास्क, यानी कि जब वो अपने गोल्स को डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपनी वर्क ड्यूटीज बनाते हैं, अपनी वर्क रिलेशनशिप बनाते हैं कि ये मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, ये मेरे कॉलीग्स हैं और इनसे मैंने काम लेना है। और फिर आप उनको टास्क असाइन करते हैं, असाइनमेंट असाइन करते हो कि आपकी ये ड्यूटी है। उसके बाद आपकी ये एक्सपेक्टेशन भी होती है कि जब वर्कर्स अपना काम लेकर आपके पास आएंगे सो इट विल मीट द स्टैंडर्ड, द बेंचमार्क जो कि आपने इस असाइनमेंट के लिए सेट कर रखा है। और तीसरी बात यह है कि आप फोकस करेंगे कि काम लेट नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी डिलेड, इट मस्ट बी फिनिश्ड ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन। सो आप में भी जब कभी ग्रुप असाइनमेंट आपको मिलती है और आप में एक टीम लीडर बनता है तो उस टीम लीडर की बेसिक यही ड्यूटीज होती हैं कि वो हर ग्रुप मेंबर को काम असाइन करता है कि तुमने इंट्रोडक्शन ढूंढनी है, तुमने कंक्लूजन ढूंढनी है या तुमने मेन पैराग्राफ ढूंढना है। और उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन भी ये होती है कि जब काम आएगा तो वो सही हो और वो डेडलाइन के मुताबिक हो। Consideration is the next leadership behavior we talked about. So, consideration is the extent to which a person's job relationships are characterized by mutual trust, respect for employees' ideas, and regard for their feelings. A leader high in consideration helps employees with personal problems, is friendly and approachable, treats all employees as equals, and express appreciation and support. In a recent survey, when asked to indicate what most motivated them at work, 66% of employees mentioned appreciation. So consideration क्या है? The extent, the degree or the level जिसमें एक पर्सन की एटीट्यूड को ट्रस्टेबल देखा जाता है। आप अपने एम्प्लॉयज के, अपने सबॉर्डिनेट की आइडियाज का और फीलिंग्स का ख्याल करते हैं। आप अच्छा काम करने पर उनको अप्रिशिएट करते हैं और गलत काम करने पर उनकी इंसल्ट डायरेक्टली नहीं कर देते, बल्कि पहले आप उनको अलहदा से समझाते हैं दैट दिस इज द राइट वर्क way to do your work and you have made a mistake and you can always correct it. But of course अगर एक एम्प्लॉय अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता and he is repeatedly deliberately making mistake, then you can always issue him a warning or you can take any other serious course of action. बट इनिशियली आपने कंसिडरेशन का मीनिंग ही यही है कि आपने अपने एम्प्लॉयज का ख्याल करना है इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, इन टर्म्स ऑफ देयर आइडियाज, इन टर्म्स ऑफ देयर फीलिंग्स। अब कंसिडरेशन में ये भी आता है कि आप उनको इतने अनरियलिस्टिक गोल्स ना प्रोवाइड कर दें जो कि फिजिकली पूरे करना पॉसिबल ही ना हो, या आप उनको इतनी शॉर्ट डेडलाइंस ना दे दें कि इतना ज्यादा काम उतने कम अरसे में करना ही पॉसिबल ना हो।
और इसके अलावा जैसा कि हमने कम्युनिकेशन के चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमेशा टू वे कम्युनिकेशन इज गुड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉयज मैनेजर्स को कुछ नहीं बता रहे तो इसका मतलब है वाकई देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजर्स उससे बेखबर बैठे हैं। अगर एक लीडर अपने एम्प्लॉयज की आइडियाज को वेलकम नहीं करेगा, एनकरेज नहीं करेगा एंड ही इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट देम, then employees are going to stop this bottom to top communication। वो फिर प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑफिस या उसके अलावा अगर कोई और इश्यूज हो रहे हैं वो मैनेजर्स के नोटिस तक नहीं लेकर आएंगे, बिकॉज उनको पता होगा कि जब हम ये बात करेंगे तो हमेशा हमें रिप्रिमांड कर दिया जाएगा, हमारी बातों का की कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी। ये सारी बातें कवर होती हैं कंसिडरेशन के बिहेवियर ऑफ द लीडरशिप में। एक ऐसा लीडर जो कि कंसिडरेट है, ही इज हाई ऑन कंसिडरेशन, इसका मतलब है कि अगर उसके एम्प्लॉयज को कोई ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स डिस्कशन के लिए अपने लीडर के पास लेकर आ सकते हैं ताकि वो उनको सॉल्व कर दे। पर्सनल प्रॉब्लम्स का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपकी वर्क परफॉर्मेंस पर, क्योंकि अगर आप घर से खुश नहीं आते सो यू आर लाइकली दैट यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। बिल्कुल उसी तरह कि अगर घर में भी आपकी किसी से लड़ाई हो या आपके किसी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है तो क्लास में आप अटेंशन पे नहीं कर सकते टू द लेक्चर, आपके ज़हन में वही बातें घूम रही होती हैं जो कि आपकी लड़ाई की होती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज अगर वो चाहें तो वो लीडर तक लेकर आए। तो लीडर का काम है कि वो जितना उसमें उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किए बगैर उसको सॉल्व कर सके ताकि वो अपने वर्क प्लेस के जो काम है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सके। इसके अलावा ही इज फ्रेंडली अप्रोचेबल। अप्रोचेबल का मतलब है कि कभी भी दे वांट टू शेयर एनी आइडिया और एनी प्रॉब्लम विद द लीडर, दे कैन ऑलवेज कम ओवर टू हिम विदाउट द फियर कि वो उनकी बेइज्जती कर देगा या उनकी बातों के नेगेटिव मीनिंग निकाल देगा। और कंसीडरेशन में एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे एम्प्लॉयज को फेयरली ट्रीट किया जाए, एज इक्वल ट्रीट किया जाए, बिकॉज अगर एम्प्लॉयज को लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस नहीं हो रही तो वहां से भी मसले शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सप्रेसेस अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट, यानी कि अगर आपके पास आपका कोई एम्प्लॉय काम के बारे में कोई कंफ्यूजन लेकर आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपने उसको डांट डपट के भेज दिया, बल्कि आपको या तो खुद उसको गाइड कर देना चाहिए या आपको किसी और को रेफर कर देना चाहिए जो कि इस पोजीशन में हो कि उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। एंड इसके अलावा हम सबको अप्रिसिएशन बहुत पसंद है, वी लाइक टू बी रिवॉर्डेड, वी लाइक टू बी अप्रिसिएटेड फॉर द गुड वर्क और द गुड एफर्ट्स दैट वी हैव ऑलवेज पुट इन। हम बच्चे से देख के बड़े तक देख सकते हैं कि हमें जब अच्छा काम करने के बाद शाबाशी दी जाती है सो वी फील वेरी हैप्पी एंड वी फील एनकरेज टू डू मोर गुड वर्क। उसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक 66% ऑफ एम्प्लॉयज ने कहा कि अप्रिसिएशन इज वन थिंग जो कि हमें मोस्ट मोटिवेट करती है एट दी वर्क। आप देख सकते हैं कि अगर एक आपका लीडर कंसिडरेट है और वो आपको अप्रिशिएट करता है, ही इज अप्रोचेबल, you can always come up to him without any fear or of insult, and he is always available to support you, then I think such a person is going to prove to be an effective leader.